Morning all of you. Okay, so we'll start now. Okay, already I've done in physiology, auditory pathway and visual pathway. So today is just for your revision. Anatomical point of view, these two pathways are not so much important, but we'll see again some clinical applied aspect is important with these pathways. So first we'll start the optic or visual pathways. So for this optic pathway we need to know about the field of vision. What is a field of vision? It includes 4 fields. Okay, आप लोगों को सबको पता ही है, बस अच्छे से थोड़ा सा सुन लो तो प्रिपेयर हो जाएगा. फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऑप्टिक पाथवे एंड ऑडिटरी पाथवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर फिजियोलॉजी. सो सुन लो अच्छे से. So it includes 4 fields as upper temporal, lower temporal, upper nasal and lower nasal. Now nasal fields are smaller than temporal fields. Okay, so larger right temporal and smaller right nasal fields of vision fuse to form the right part of binocular vision. Most importantly, there is a macular vision. Macula is a part of the retina where light is directly placed on the on this macula to form the vision. ठीक है. So this is the field of vision. Now coming to the retina. Retina का क्या है काम? Retina is also divided into temporal and nasal part. Retina temporal nasal part में divided and each is further subdivided into upper and lower area or upper or lower part जो भी बोलो. Now the fibers. Listen carefully. Fibers from the nasal part of the two retinae that decussate to form the optic chiasma. ये आपको पता भी है. And travel to the contralateral site in the optic tract. ये पता है. Now these fibers from the temporal hemiretinae continue ipsilateral in the optic tract. मतलब टेम्पोरल हेमिरेटिनी मतलब टेम्पोरल साइड का जो फाइबर्स है, ठीक है, जो रेटिना से हेमिरेटिना से जो टेम्पोरल फाइबर्स आ रहा है, दैट कंटिन्यू इप्सिलेटरल इन द ऑप्टिक ट्रैक्ट. इस साइड का उस साइड, उस साइड का इस साइड. ठीक है. वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज. Okay, am I audible? Okay, हाँ, जो टेम्पोरल सम टेम्पोरल फाइबर्स जो हेमिरेटिनी टेम्पोरल हेमिरेटिनल फाइबर्स है वो कंटिन्यू होता है इप्सिलेटरल इन द ऑप्टिक. इप्सिलेटरल मीन सेम साइड, कॉन्ट्रालैटरल मीन अदर साइड. ठीक है. सो राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरीज द फाइबर्स ऑफ द राइट टेम्पोरल हेमिरेटिना एंड लेफ्ट नेजल हेमिरेटिना and the left nasal hemiretina respectively. ठीक है. Now first order neuron are represented by the bipolar cells of retina. First order neuron जो आ रहा है that are represented by the bipolar cells. जो retina में bipolar cells है आप लोगों को पता है. So the first order neurons that these are represented by the bipolar cells of retina. They receive impulses from the rods and cones present in the retina. वहाँ से ये receive करते हैं. फिर then it will form the optic nerve is made up of the axons of ganglion cell. ये आपको पता है. वो जो ganglion cells है उसी के axons है optic nerve. Optic chiasma में क्या है? जो nasal fibers including those from the nasal half of the macula cross the midline. जो nasal fibers है वो midline cross करते हैं and enter the opposite side of the tract. जो nasal fibers है temporal fiber cross नहीं करता है. nasal fibers जो है वो क्रॉस करके मिड लाइन पे एंटर द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रैक. मतलब क्रॉस करके इस साइड का उस साइड, उस साइड का इस साइड.
so that we form now the optic tract. ये आपको आइडिया क्लियर भी है, but for your revision. So each optic tract winds round the cerebral peduncle of the midbrain. ये आप लोग अगर वीडियो देखे हो तो देखे भी होंगे कि जस्ट सेरिब्रल पेडंकल के ऊपर, मिड ब्रेन का जो सेरिब्रल पेडंकल है उसके ऊपर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट वाइंड करते हैं इसको. फिर नियर द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी इट डिवाइड्स इनटू लैटरल एंड मीडियल रूट्स. जेनिकुलर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास आके. नाउ द लैटरल रूट इज थिक एंड टर्मिनेट्स इन द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. नाउ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रिसीव्स द लैटरल रूट ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट. द सेल्स of this body are arranged in 6 layers which form the third order neuron. ये ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है. Now lateral geniculate body से ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है. Now ऑप्टिक रेडिएशन क्या है? उसको हम लोग जेनिकुलो कैल्केराइन ट्रैक्ट भी बोलते हैं. न्यूरो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये. Now optic radiation begins from the lateral geniculate body, passes through the retrolentiform part of the internal capsule and ends in the visual cortex of the cerebrum. विजुअल कॉर्टेक्स जहाँ पे है वहाँ पे जाके ये एंड होता है ऑप्टिक रेडिएशन. सो दिस इज द होल पाथवे. नाउ विजुअल कॉर्टेक्स का द ऑप्टिक रेडिएशन टर्मिनेट इन द स्ट्राइट एरिया वेयर द कलर, साइज, शेप, मोशन, इल्यूमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी आर एप्रिशिएटेड सेपरेटली. विजुअल कॉर्टेक्स का काम ये है, मतलब कलर आइडेंटिफाई कराना, साइज, शेप, इल्यूमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब. The area of the visual cortex that receives impulses from the macula is relatively much larger than the part related to the rest of the retina. जो macula से आता है वो impulse relatively larger होता है retina के अदर साइड से जो आ रहा है उससे. ठीक है, comparatively macular vision जो है वो ज़्यादा large है. Now this is the visual pathway. You can see here. See, एक लेफ्ट विजुअल फील्ड है, एक राइट विजुअल फील्ड है. तो बाइनोकुलर जोन किसको बोल रहे हैं देख लो यहाँ पे. सी द पिक्चर. देन कौन से फाइबर्स कैसे आते हैं? नेजल फाइबर्स क्रॉस करते हैं उसका, इट विल फॉर्म द ऑप्टिक काइज़मा. देन ऑप्टिक ट्रैक्ट हो रहा है, नेजल फाइबर क्रॉस करके आ रहा है, बट टेम्पोरल फाइबर क्रॉस नहीं होता है. देन ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा है लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और बॉडी में. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन हो रहा है जो ऑक्सीपिटल लोब में कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वहाँ पे जाके विजुअल एरिया जो है एंड हो रहा है. ठीक है. नाउ सम पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स आर देयर. व्हाट इज दिस? जैसे कि फ्लो चार्ट में है, देख लो. शाइनिंग ऑफ टॉर्च लाइट इन द लेफ्ट आई. अगर ऐसा हो लेफ्ट आई में कोई टॉर्च आई दे तो वो कैसे रिफ्लेक्स होगा, उसका प्यूपिल का रिफ्लेक्स कैसा आएगा? सो वो ऑप्टिक नर्व में जाएगा वो लाइट डायरेक्टली टॉर्च लाइट. देन ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक काइज़मा, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट. ऑप्टिक ट्रैक्ट होके वो लाइट कहाँ जाएगा? फ्यू फाइबर्स गो टू द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ द सेम एंड इवन ऑपोजिट साइड. मतलब सेम साइड के कुछ फाइबर्स है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, सेम साइड में भी जा सकते हैं कि ऑपोजिट साइड में भी जा सकते हैं. तो वहाँ पे बोथ साइड के जो एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस है उसमें जा रहे हैं. फिर एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से ऑक्यूलोमोटर नर्व बोथ द साइड वो रिसीव करते हैं लाइट को. देन ब्रांच टू इंफीरियर ऑब्लिक रिले इन द सिलियरी गैंग्लियन, वहाँ से सिलियरी गैंग्लियन में रिले होता है. फिर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स बोथ साइड का वहाँ होके वाया शॉर्ट सिलियरी नर्व ये जाते हैं स्फिंक्टर पिपुली मसल ऑफ द बोथ आई. जैसे स्फिंक्टर पिपुली में ये लाइट जाता है तो बोथ आईज तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ बोथ पिपल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो दिस इज द पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स. जैसे कि लाइट अगर लेफ्ट आई या फिर राइट आई किसी में भी आए तो कैसे उसका रिफ्लेक्स प्यूपिल में आएगा. सो होप यू अंडरस्टैंड. ये पहले भी हो चुका है.
सी द प्यूपिलरी लाइट एंड कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। ये सारे फाइबर्स मतलब कहाँ से कहाँ कैसे जाते हैं, किससे रिले होता है, कैसे जाते हैं। जैसे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस दिख रहा है वहाँ पे मिडब्रेन वेस्टफाल एरिंजर न्यूक्लियस है, वहाँ से ऑक्यूलोमोटर में जाते हैं। ऑक्यूलो सी द डायग्राम केयरफुली। देन ऑक्यूलोमोटर से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं सिलियरी गैंग्लियन पर। सिलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सिलियरी नार्व वाया ये कॉन्स्ट्रिक्टर पिपली मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। ओके, सो दिस इज द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। कैसे आई कैसे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करते हैं वो देखो। पहले रीड अ फिल्म मैगजीन, ठीक है, तो वो जैसे कि हम लोग रीड करते हैं तो वो रिफ्लेक्स में तो कैसे से जाते हैं, ऑप्टिक नर्व थ्रू ऑप्टिक काइज़मा, देन ऑप्टिक ट्रैक, उससे फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो पाथवे जैसे जा रहा है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन होगा जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स मतलब विजुअल एरिया में जा रहा है। नाउ ये विजुअल एरिया से सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है वहाँ पे, तो वो फेसिकुलस मतलब वो बंडल होके नॉट बंडल होके ये मीडियल फ्रंटल गाइरस में आएगा। फ्रंटल आई फील्ड जो है आपको फंक्शनल एरिया पता है, तो वहाँ पे फ्रंटल आई फील्ड है। सो फ्रंटल आई फील्ड से वहाँ से ऑक्यूलोमोटर नार्व उसको रिसीव करेगा। जैसे ऑक्यूलोमोटर रिसीव करे तो ये जाएगा वेस्टफाल एडिंजर न्यूक्लियस पे, एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस पे बोथ साइड के, ठीक है। तो वहाँ से ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सम फाइबर्स गो टू द मीडियल रेक्टाई मीडियल रेक्टाई विच रिजल्ट इन मीडियल कन्वर्जेंस ऑफ द आई, ठीक है। कुछ फाइबर्स मीडियल रेक्टाई में जाएगा जहाँ पे आईज का मीडियल कन्वर्जेंस होगा, और कुछ फाइबर्स कहाँ जाएगा, नॉट टू इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक के नाम में जाएगा। सो फिर वहाँ से सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन से रिले होगा शॉर्ट सिलियरी नर्व्स वाया कॉन्स्ट्रिक्टर पिपुलरी एंड सिलियरी मसल में, ठीक है। तो ये ऐसे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स ऐसा होता है। ओके, तो आप लोग अगर क्वेश्चन आए इफ एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू और फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पिपुलरी रिफ्लेक्स के लिए भी, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए भी ये फ्लो चार्ट याद के रखना है आप लोगों को। एंड फ्लो चार्ट लिख के अगर टाइम ना मिले तो फ्लो चार्ट भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है। अगर टाइम है तो फ्लो चार्ट लिख के डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो। सो दिस इज द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये एकदम धीरे धीरे, मैं तो यहाँ आप लोग सामने होते तो मैं अच्छे से समझा देती, अब तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, आप लोगों को डायग्राम देख के ही समझना पड़ेगा। धीरे धीरे लेवलिंग समझोगे तो इजी समझ में आ जाएगा, इजी है। बट आप सबको याद करना है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है रिफ्लेक्स। नाउ दिस इज द कंजंक्टिवल रिफ्लेक्स, टचिंग ऑफ कॉर्निया और कंजंक्टिवा। तो वो कौन लेते हैं, कौन सा नर्व, ऑफ्थैल्मिक नर्व लेते हैं। देन वहाँ से जा रहा है सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ 5 मीन्स ट्राइजेमिनल नर्व के लिए। देन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल होके वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व में जाते हैं। देन ऑर्बिकुलर ऑक्यूलाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से कंजंक्टिवल और कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे क्लिनिकल एनाटॉमी हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ और थोड़ा पिक्चर भी है मेरे पास, बस अच्छे से सुनो। फिजियोलॉजी में आप लोगों को हुआ है मुझे पता है, बट ये ऑप्था में जाके बाद में आप लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे। सो फर्स्ट लीजन इन रेटिना लीड्स टू स्कोटोमा, स्कोटोमा बोलते हैं इफ देयर इज एनी लीजन इन द रेटिना, दैट इज सर्टेन पॉइंट्स में बिकम ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। सो लॉस ऑफ विजन इन वन हाफ ऑफ विजुअल फील्ड इज कॉल्ड द हेमिएनोपिया। वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट
में भी हो सकता है। याद रखना व्हाट इज हेमी एनोपिया। हेमी एनोपिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ विजुअल पाथवे। सो लॉस ऑफ विजन इन वन हाफ, एक हाफ का अगर विजन लॉस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एनोपिया। ऑप्टिक काइज्मा लीजन इफ सेंट्रल विल लीड टू बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया। ऑप्टिक काइज्मा में सेंट्रली लीजन हुआ तो, बट इफ पेरिफेरल ऑन बोथ साइड, पेरिफेरली बोथ साइड में अगर लीजन है तो वो बाइनेजल हेमी एनोपिया होगा। अगर सेंट्रली लीजन है, याद करना, हाँ, ऑप्टिक काइज्मा में अगर सेंट्रली लीजन है विच इज नोन एज द बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया। अगर पेरिफेरल लीजन है बोथ द साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनेजल हेमी एनोपिया। फिर a lesion on the right optic tract leads to the left homonymous hemianopia, left half of right and left field vision उसमें नहीं होता है, ठीक है। homonymous hemianopia if a lesion on the right optic tract leads to left, right में हुआ तो left homonymous hemianopia होगा, अगर लेफ्ट में हुआ तो राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया होगा। सो अगर लेफ्ट हुआ तो मतलब राइट साइड में लीजन है ऑप्टिक ट्रैक्ट में, तो लेफ्ट हाफ ऑफ राइट एंड लेफ्ट फील्ड विजन नहीं आएगा, लेफ्ट फील्ड विजन लॉस हो जाएगा एंड लेफ्ट हाफ ऑफ राइट आई का भी विजन लॉस हो जाएगा। सेम अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन है तो राइट हाफ ऑफ लेफ्ट आई का विजन लॉस हो जाएगा एंड राइट फील्ड विजन लॉस हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करके लिखना है, ठीक है। दीज आर द क्लिनिकल्स। नाउ यहाँ पे वही लीशन के हिसाब से दिखाया है, मैं थोड़ा थोड़ा और बता रही हूँ। नाउ एनोपिया, व्हाट इज एनोपिया? लॉस ऑफ विजन इन वन विजुअल फील्ड। एक विजुअल फील्ड का विजन पूरा लॉस्ट है, पूरा लॉस है, सो दैट इज नोन एज द एनोपिया, ठीक है। ये राइट साइड का विजन लॉस है तो राइट एनोपिया, राइट। नाउ हेमी एनोपिया, लॉस ऑफ विजन इन वन हाफ ऑफ विजुअल फील्ड, हेमी एनोपिया, ठीक है। सो वो बाइनेजल हो सकता है, बाइटेम्पोरल हो सकता है, ओके। सो बाइनेजल में कैसा होता है फिर लॉस, विजन लॉस होता है, ये डायग्राम है, अच्छे से देखो। और बाइटेम्पोरल में कैसा होता है, बाइनेजल होगा तो नेजल साइड का विजन लॉस होगा, बाइटेम्पोरल है तो टेम्पोरल साइड का विजन लॉस होगा, ठीक है। क्वाड्रेंटोपिया, लॉस ऑफ विजन इन क्वाड्रेंट ऑफ विजुअल फील्ड, मतलब सुपीरियर क्वाड्रेंट, मतलब सुपीरियर साइड में है तो सुपीरियर, इंफीरियर साइड में है तो इंफीरियर, ऐसे टाइप के। Now homonymous hemianopia that is incomplete होता है and complete होता है। यहाँ पे नहीं आया है, एक इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट है। इनकम्प्लीट में क्या है, डिफेक्ट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, लोकेशन, स्लोप ऑफ मार्जिन, जैसे कि पोस्ट ऑप्टिक रेडिएशन लीजन जो है वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट हेमिएनोपिया का। और कंप्लीट हेमिएनोपिया क्या है, डिफेक्ट्स आर डिसिमिलर, मतलब जो डिफेक्ट्स आएगा वो बोथ साइड में सिमिलर नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड लैटरल जेनिकुलर बॉडी लीशन अगर हुआ तो वो ऐसा होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लीशन। देखो ये 1 2 3 4 करके जो है तो उसी एरिया में लीजन है, अगर उस एरिया में लीजन है तो क्या होगा, देखो ये लेफ्ट साइड, नंबर 1 लेफ्ट साइड कहाँ पे है, ये ऑप्टिक नर्व में लीजन है तो उसमें कहाँ का फील्ड ऑफ विजन जा रहा है, वैसे करके ये डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ लीजन होने से कैसे टाइप के एनोपिया बोलो या फिर हेमिएनोपिया बोलो होता है, ठीक है। मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगी कि ये डिटेल्स में आप बाद में जाके पढ़ोगे। सो आई जस्ट वांट टू रिवाइज। Now field defects in lesion of optic nerve. ऑप्टिक नर्व में अगर लीजन हुआ तो लॉस ऑफ विजन इन फुल विजुअल फील्ड, जैसे कि राइट एनोपिया हो सकता है, लेफ्ट एनोपिया हो सकता है।
राइट एनोपिया में लॉस ऑफ विजन इन राइट विजुअल फील्ड, लेफ्ट एनोपिया में लेफ्ट विजुअल फील्ड का लीजन जाएगा। नाउ कॉज हो सकता है ट्रॉमेटिक एवल्शन और ऑप्टिक एट्रोफी, कुछ भी हो सकता है कॉज। नाउ फीचर्स क्या है उसमें, इप्सिलैटरल एनोपिया हो रहा है, लॉस ऑफ विजन मतलब सेम साइड का। सो लॉस ऑफ डायरेक्ट प्यूपिलरी रिएक्शन सेम साइड, लॉस ऑफ कंसेंसुअल प्यूपिलरी रिफ्लेक्स वो भी लॉस हो जाता है अदर साइड का, मतलब लेफ्ट में हो तो राइट का, राइट में हो तो लेफ्ट का। नाउ नियर और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, ठीक है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और नियर रिफ्लेक्स, नियर विजन प्रेजेंट होता है उसमें। नाउ फील्ड डिफेक्ट्स इन लीजन ऑफ ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक कायस्मा में है तो आपको पता है बाइनेजल हेमिएनोपिया होगा या फिर बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा। बाइनेजल हेमिएनोपिया हुआ तो उसमें क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल एनलार्जमेंट और डायलेटेशन दिखता है उसमें। एथ्रोमा और कैरोटिड्स और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में एथ्रोमा दिखता है, मतलब वहाँ पे कोई भी कुछ भी सबमिशन हो जाता है। और बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया में पिट्यूटरी एडिनोमा होता है और मैलिग्नेंसी, मतलब ये सब रीजन है जिस वजह से ये बाइनेजल हेमिएनोपिया और बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया हो सकता है। सो दीज आर द कॉज, जैसे कि थर्ड वेंट्रिकल, ये बाइनेजल हेमिएनोपिया थोड़ा लेस कॉमन है। थर्ड वेंट्रिकल एनलार्जमेंट किसी भी कारण से अगर हो गया या फिर डायलिटेशन है थर्ड वेंट्रिकल में, सो वी कैन सी द लीजन ऑन द ऑप्टिक कायस्मा, सो दैट लीड्स टू बाइनेजल हेमिएनोपिया। ये उतना कॉमन नहीं है। फिर कैरोटिड में या फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में थोड़ा ऑक्लूशन है, कुछ आर्थ्रोमा फॉर्म हुआ है वहाँ पे, तो दैट लीड्स टू बाइनेजल हेमिएनोपिया। और बाइटेम्पोरल क्यों होगा, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा है, मैलिग्नेंसी है, क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रॉनिक कायस्मल एराक्नोइडाइटिस, फ्रैक्चर ऑन द बेस ऑफ स्कल, ये सब रीजन है फॉर दैट लीड्स टू द बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया, मतलब टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन लॉस हो जाता है और बाइनेजल में नेजल फील्ड ऑफ विजन लॉस होता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन। नाउ फील्ड डिफेक्ट्स इन लीजन ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये भी पता है आपको, अभी कुछ देर पहले बताई थी कि होमोनिमस हेमिएनोपिया होता है। जैसे लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट सेरिब्री लीड्स टू राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया। अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में है तो राइट में होगा। एफरेंट प्यूपिलरी कंडक्शन डिफेक्ट प्रेजेंट उसमें, एंड एसोसिएशन विथ राइट हेमिप्लेजिया एंड लेफ्ट third nerve paralysis indicates that left optic tract lesion involving left cerebral peduncle and left third nerve. So इतना डिटेल्स अभी आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, only you have to know if there is a left optic tract lesion, so वहाँ पे क्या होगा, right homonymous hemianopia होगा। अगर right optic tract में lesion है तो left homonymous hemianopia होगा, ठीक है। Cause of optic tract lesion, these are the cause. Syphilitic meningitis, these are the cause. Tuberculous meningitis, tentorial meningioma, temporal lobe glioma, ये सारे reasons है, ये भी अभी उतना important आपके लिए नहीं है। Now field defects in lesion of the lateral genicular body. The lesion of lateral genicular body produce incongruous homonymous hemianopia with sparing of pupillary reflex. These are extremely rare, ये rare case है बहुत। Now lesion of the optic radiation. Optic radiation में अगर lesion है, anterior temporal lobe में कैसा होगा, parietal lobe में कैसा होगा, and posterior part of the internal capsule जो एंटीरियर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, उसमें कैसे विजन आएगा, उसी का डायग्राम है। मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगी, ये डिटेल्स आप लोग को अभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि बाद में जाके आप लोग डिटेल्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत कुछ थियरी है इसमें, आगे जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कॉमन कॉज ऑफ लीजन्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन,
जैसे vascular occlusion, cerebral tumors, injury by fall on the back of head. These are the causes that leads to the lesion in the optic radiation. Now hope थोड़ा सा आपको ऑप्टिक रेडिएशन मतलब विजुअल पाथवेज के बारे में पता चल गया. एंड यू हैव टू नो मेनली हेमियानोपिया, बाई नेजल क्या होता है, बाई टेम्पोरल क्या है, एंड एनोपिया क्या है, ये पता होने से ही चलेगा अभी फिलहाल. ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये रिवाइज ही हो रहा है. नाउ कमिंग टू ऑडिटरी पाथवे. सो ऑडिटरी पाथवे के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर के. ठीक है, ईयर में बस स्ट्रक्चर को देख लो, ये आप लोगों को फिजियोलॉजी में अच्छे से हुआ है, मुझे पता है. क्या क्या सेल्स होता है, हेयर सेल्स होता है, आउटर हेयर सेल्स होता है, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, सेल्स ऑफ हेंसन है, सेल्स ऑफ क्लॉडियस है, सेल्स ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन है एक नीचे पूरे, फिर पीलर्स होता है उसमें, पीलर सेल, टनल ऑफ कॉटी, कॉटी जो है उसका टनल होता है, हेयर सेल के बंडल होते हैं, रेटिकुलर लमाइना होता है, इनर हेयर सेल आउटर हेयर सेल अलग से होता है, और नार्व फाइबर कहे जाते हैं. ये उसका डायग्राम है. नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ईयर, व्हाट आर द सेल्स आर प्रेजेंट, ये सब इसमें है. तो ये बस मैं ऐसे ही रखी हूँ, आप लोगों को पहले भी ये पता है. कमिंग टू द ऑडिटरी कॉर्टिकल प्रेजेंटेशन, मतलब कॉर्टेक्स में ऑडिटरी प्रेजेंटेशन कैसा है. द ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया एडजेसेंट टू द प्राइमरी ऑडिटरी रिसीविंग एरियाज आर वाइड स्प्रेड. ब्रॉडमैन्स एरिया आपको पता है, एरिया नंबर 22. प्रोसेसिंग उसका फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स रिलेटेड टू द स्पीच. स्पीच से रिलेटेड हो, मतलब स्पीच से रिलेटेड है ये, मतलब ये ऑडिटरी सिग्नल प्रोसेस करते हैं रिलेटेड टू स्पीच, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं. नाउ प्लैनम टेम्पोरल मोर एक्टिव ऑन द लेफ्ट साइड देन ऑन द राइट साइड. प्लैनम टेम्पोरल इज अ पार्ट ऑफ अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है. नाउ एरिया 22 ऑन द राइट साइड का क्या है, वो क्या फॉर्म करते फंक्शन के लिए, मेलोडी, पिच और साउंड इंटेंसिटी, ये सब राइट साइड के एरिया नंबर 22 ये देखते हैं. Now the auditory pathways are also very plastic, and like the visual and somaesthetic pathways, they are modified by experience. मतलब जितना ज़्यादा experience के साथ साथ ये modify भी होता है auditory pathway. Now this is the main auditory pathway. विजुअल पाथवेज के लिए जैसे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी था, ऑडिटरी पाथवेज के लिए मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है. ये आपको पता भी है ऑलरेडी. सो मेनली वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है उसमें ये ऑडिटरी पाथवे पूरे रिले होता है. ठीक है, ऑडिटरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. नाउ it has ascending fiber, descending fiber, or you can say it has afferent pathway, efferent pathway. वो धीरे धीरे हम लोग अभी देखेंगे. तो this is the auditory pathway main. Primary auditory area is the Brodmann's area 41 जो cerebral cortex में है. सी ईयर में जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है वहाँ से फाइबर्स कहाँ आ रहा है, जो बाइपोलर सेल्स है, ये यही फाइबर्स में जो स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉक्लियर नर्व है ये वहाँ पे आ रहे हैं रिफ्लेक्स. पाथवे में बता रही हूँ, ऑर्गन ऑफ कॉटी से लेके ये आता है स्पाइरल गैंग्लियन पॉट, कॉक्लियर नर्व थ्रू स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉक्लियर नर्व. देन वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व थ्रू ये कहाँ जा रहा है, दिस पाथवे विल गो टू, पहले रिलीज होता है कॉक्लियर न्यूक्लियस में, कॉक्लियर न्यूक्लियस होके सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, वहाँ पे सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाते हैं पोन्स में. ठीक है, पोन्स और मेडुला के जंक्शन में जो है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से ये मिड ब्रेन को क्रॉस करते हुए
this will form after the superior olivary nucleus. These fibers are known as the lateral lemniscus. In our fiber इसको हम लोग बोलेंगे lateral lemniscus. Then it crosses the midbrain. So midbrain में जो inferior colliculus है, inferior colliculus में आके ये रिले करते हैं midbrain के. So after inferior colliculus, it is going to the medial geniculate body of the thalamus. Thalamus के जो medial geniculate body है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रिले होता है. Then this fibers is going to the primary auditory area of the temporal lobe. Temporal lobe में जो primary auditory area है, auditory cortex 41 Brodmann's area, वहाँ पे जाते हैं. So this is the whole auditory pathway from the organ of corti of ear से लेके ये bipolar cells through कॉक्लियर नर्व के स्पाइरल गैंग्लियन में जाते हैं. वहाँ पे दिस कॉक्लियर नर्व कॉक्लियर न्यूक्लियस पे जाते हैं मेडुला में. कॉक्लियर न्यूक्लियस से लेके ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं. आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूअस एज अ लैटरल लेमिनिस्कस. कहाँ जाते हैं? रिले करते इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन में. देन इंफीरियर कॉलिकुलस होके इट इज गोइंग टू द medial geniculate body of the thalamus. ठीक है. Then from the medial geniculate body it is going to the primary auditory cortex in the temporal lobe. ठीक है. This is the whole auditory pathway. Next some afferent auditory pathways are there. Afferent में generally जो cochlea है, vestibulocochlear cochlear nucleus होके superior salivary olivary complex, lateral lemniscus, then inferior colliculus, medial geniculate body. ठीक है. और ब्रेन में है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में. एफरेंट सभी एफरेंट है, मतलब जहाँ जहाँ फाइबर रिसीव हो रहा है वही एफरेंट है. इफरेंट ऑडिटरी पाथवेज में डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स फ्रॉम द ऑडिटरी कॉर्टेक्स टू द ब्रेन स्टेम एंड कॉक्लिया. मतलब जो डिसेंडिंग फाइबर्स है वही इफरेंट फाइबर्स है. द ऑडिटरी इफरेंट सिस्टम इज नॉट वेल अंडरस्टूड. अभी तक अच्छे से समझ नहीं आया है. इट इज रिमेन समवॉट अ मिस्ट्री. नाउ आवर ऑडिटरी इफरेंट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ये जो ऑडिटरी पाथवेज है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल है सेंडिंग इनहिबिटरी मैसेज टू द आउटर हेयर सेल. जो आउटर हेयर सेल है ईयर में, तो उसको इनहिबिटरी मैसेज भेजते हैं outer hair cells in the cochlea to control the stiffness and membrane vibration. membrane vibration या फिर stiffness जो होता है उसको control करने के लिए. Now innervation of the stapedius and tensor tympani muscle in the middle ear, उसके लिए भी ये efferent pathway important है. Now efferent pathways का main role क्या है, जो हम मतलब it is believed to play a role in detection of signal noise, protection in noise induced cochlear damage. noise induced cochlear damage है, ये efferent pathway थोड़ा सा इसको improve करते हैं, मतलब protect करते हैं. development of hearing and processing of complex auditory signal वो develop करते हैं. मतलब auditory pathways का role यही है, मतलब function यही है, ये आज तक ऐसे हम लोग believe करते हैं. ठीक है. तो here ये diagram को देखो, generally सभी afferent या ascending और descending fibers generally होता है. So these two track यहाँ पे दिख रहा है efferent track बोल के, जो सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं अप टू द कॉक्लियर न्यूक्लियस तक. तो ये जो फाइबर्स क्रॉसिंग हो रहा है इसी को efferent ऑडिटरी पाथवे बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ और इम्पोर्टेंट थिंग है, फ्रॉम द कॉक्लियर न्यूक्लियस अप टू द कॉक्लियर न्यूक्लियस, मतलब ये फिर से मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रही हूँ. कॉक्लियर न्यूक्लियस आप पे है, देख लो. कॉक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मेड्यूला. सो बिफोर मेड्यूला, वो मेड्यूला के कॉक्लियर न्यूक्लियस पहुंचने तक, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम द ईयर से जो आ रहा है, ऑर्गन स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से. सो स्पाइरल गैंग्लियन होके कॉक्लियर नर्व थ्रू दिस विल गोइंग टू द कॉक्लियर न्यूक्लियस. तो अप टू दिस द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दिस इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. नाउ
From the cochlear nuclei, the second order neuron arise. These fibers ascend into the pons. ये pons में जाते हैं. Fibers crosses the midline in trapezoid body and terminate in the nucleus of the trapezoid body. ये डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा. कुछ फाइबर्स क्रॉस करके ट्रेपेजॉइड बॉडी में टर्मिनेट होता है. ठीक है. इन द कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, मतलब इस साइड का उस साइड में, इस राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, ऐसे. नाउ सम फाइबर्स, और कुछ फाइबर्स, ये कुछ फाइबर्स का है, कुछ फाइबर्स रन इप्सिलेटरली सेम साइड में जाते हैं एंड टर्मिनेट इन द सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. दोनों सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगे, बट सम फाइबर्स ट्रेपेजॉइड बॉडी में टर्मिनेट होके वहां से मतलब क्रॉस होता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट. बट अल्टीमेटली इप्सिलेटरल बोलो, कॉन्ट्रालैटरल बोलो, दोनों को सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाना है. ठीक है. सो फ्रॉम द सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस असेंडिंग फाइबर्स कंप्राइज द लैटरल लेमिनिस्कस. उसके बाद लैटरल लेमिनिस्कस बोलते हैं फाइबर्स को, which runs to the tegmentum of the pons and terminate into the inferior colliculus of the midbrain. ठीक है. मिडब्रेन के inferior colliculus में जाके ये end होता है. And from there the third order neuron arise. This third order neurons अभी क्या करते हैं, ये inferior colliculus से it will going to the medial geniculate body. medial geniculate body से लेके it will going to the primary auditory cortex. ठीक है. So this is the whole auditory pathway. Hope you all have understood. Already revise हो रहा है आप लोगों का. Now these are the area for the language. देख लो ये वॉर्निक्स एरिया कौन सा है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ब्रोकस एरिया, एंगुलर गाइरस. दीज आर ऑल important areas for language. motor control of mouth and lips कौन करते हैं, motor cortex, सबका यहाँ पे auditory pathway में language के लिए these areas are very very important. ठीक है. coming to some reflex, tympanic reflex और acoustic reflex इसको बोलते हैं. ये बाद में जाके आप लोग एनटी में जाके अच्छे से पढ़ोगे, बस थोड़ा सा जानकारी. लाउड साउंड इनिशिएट अ रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन इन द मिडिल ईयर मसल. मिडिल ईयर मसल मतलब टेंसर टिम्पैनी एंड द स्टेपिडियस. तो ये मसल के लिए जो लाउड साउंड इनिशिएट करते हैं रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग टिम्पैनिक रिफ्लेक्स बोलते हैं. सो क्या करते हैं ये, दे पुल द मैनोब्रियम ऑफ द मैलियस. मैलियस इनवर्ड, मैलियस और स्टेपिस ये सारे छोटे छोटे बोन्स है जो ईयर में प्रेजेंट है, ऑसिकल्स, स्टेपिस, मैलियस. ठीक है. सो ये रिफ्लेक्स में क्या होता है, जनरली ये जो मसल है दे पुल द मैनोब्रियम ऑफ मैलियस. मैलियस का पार्ट है जिसको मैनोब्रियम बोलते हैं, उसको पुल करते हैं इनवर्ड में. एंड द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस, स्टेपिस में फुट प्लेट है तो वो आउटवर्ड चले जाते हैं. सो दिस डिक्रीजेस साउंड ट्रांसमिशन. ये क्या करते हैं, साउंड ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर देते हैं. इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव है. तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो दैट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स फ्रॉम कॉजिंग एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर. तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग साउंड आए तो वो रिफ्लेक्स को ऐसे करते हैं ताकि ऑडिटरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होके एक्सेसिव, मतलब उसके वजह से ऑडिटरी रिसेप्टर स्टिमुलेशन ना हो तो फिर कान में क्या है, सारे मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएगा, हम लोगों को तकलीफ होगा. तो वो उसी को प्रिवेंट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स फ्रॉम कॉजिंग एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर. इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टिम्पैनिक रिफ्लेक्स या फिर एकॉस्टिक रिफ्लेक्स ज़रूरी है, जो इस हिसाब से होता है. टेंसर टिम्पैनी स्टेपिडियस मसल जो है वो इसको मतलब मेंटेन करते हैं. मैनोब्रियम ऑफ मैलियस को इनवर्ड पुल करके एंड स्टेपिस के फुट प्लेट जो है उसको आउटवर्ड करके. ठीक है. सो दिस इज द टिम्पैनिक रिफ्लेक्स और एकॉस्टिक रिफ्लेक्स.
Next, masking also will be there. This is the hearing threshold for a given sound. Increases in the presence of background sound or noise. उसको masking बोलते हैं. So deafness and hearing loss क्या है? Most common sensory defects in human. Generally ये aging के साथ साथ होता है. Presbycusis बोलते हैं इसको. So gradual hearing loss associated with aging. Excuse me. So due to gradual cumulative loss of hair cells and neurons, ये deafness आ रहा है. Okay. So hearing loss is a multifactorial disorder caused both genetic and environmental factors. उसका मतलब कुछ भी environmental factors भी हो सकता है, genetic effects भी हो सकता है. But generally deafness और hearing loss एजिंग के साथ साथ ही होता है, जिसमें हेयर सेल और न्यूरॉन्स का मतलब लेस हो जाते हैं. लॉस ऑफ हेयर सेल्स एंड न्यूरॉन्स होता है उसमें. नाउ डेफनेस में टू टाइप्स ऑफ डेफनेस आर देयर. कंडक्टिव डेफनेस है और सेंसरी न्यूरल डेफनेस है. सो कंडक्टिव और कंडक्शन डेफनेस एंड सेंसरी हियरिंग लॉस. कंडक्टिव में क्या होता है? impaired sound transmission in the external और middle ear. वहाँ पे external ear में and middle ear में impaired sound transmission होता है. Impacts all sound frequencies. Cause क्या है? Plugging of the external auditory canals with wax. Wax जम जाता है, उसके वजह से हो सकता है. और any other types of foreign body अगर है तो उसके वजह से भी conductive डेफनेस हो सकता है. फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें ओटाइटिस किसको बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर ईयर. ठीक है. एंड ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लामेशन इन द मिडिल ईयर. ओटाइटिस एक्सटर्ना आउटर ईयर में, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर में. दैट कॉजिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन. उसमें क्या हो जाता है? अगर इन्फ्लामेशन है तो मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड दिखेगा, तो इस वजह से भी कंडक्टिव डेफनेस हो सकता है. The perforation of the eardrum and osteoclerosis. Osteoclerosis भी एक कंडीशन है डेफनेस का. और परफोरेशन दिखता है ईयरड्रम जो है उसमें छोटे छोटे परफोरेशंस दिखते हैं, तो उस वजह से भी कंडक्टिव डेफनेस हो सकता है. सो दीज आर द रीजन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेंसरी न्यूरल डेफनेस. मोस्ट कॉमनली द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ कॉक्लियर हेयर सेल्स. कॉक्लियर हेयर सेल्स जो है उसका लॉस हो जाता है, जिस वजह से सेंसरी न्यूरल डेफनेस होता है. तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज डैमेज द आउटर हेयर सेल. अगर बहुत ज़्यादा नॉइस में एक्सपोजर हो रहा है किसी का, तो उसमें क्या होता है? आउटर हेयर सेल्स जो है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकता है. प्रॉब्लम्स विद द एक्सक्रेनियल नर्व्स, मतलब any problems with the vestibulocochlear nerve, or there will be tumor present in the nerve that causes sensory neural deafness. ये भी है. प्रॉब्लम विथ सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे. जो पाथवे है उसी से भी अगर कुछ भी लीजन हो या फिर प्रॉब्लम हो, उसमें सेंसरी न्यूरल डेफनेस दिखता है. Now impairs the ability to hear certain pitches while others are unaffected. बस इतना जानने से ही अभी चलेगा. नाउ दिस आर द मेथड. ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, उसमें वेबर मेथड में क्या है, रिनी मेथड में क्या है, शॉबैक्स में क्या है, ये सब आगे जाके आप लोग पढ़ोगे. मैं डिटेल्स नहीं बता रही हूँ. डेफनेस का ही है ये सब सारे मेथड्स. उसमें मतलब ट्रीट कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कि कहाँ पे डेफनेस है, कैसे टाइप का डेफनेस है, उसी को देखने के लिए. नो ऑडियोमेट्री और एक इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द ईयर और ऑडिटरी पाथवे. मतलब ऑडियोमेट्री बहुत कुछ हम लोग ऑडियोमेट्री से जान सकते हैं. जैसे ऑडिटरी एक्विटी वो मेजर होता है, मेजर विथ एन ऑडियोमीटर. ऑडियोमीटर से ये मेजर होता है. प्रेजेंट द सब्जेक्ट विद द प्योर टोन्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज थ्रू द ईयरफोन. तो उसी से हम लोग पता लगाते हैं उनका मतलब ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी इफेक्ट कैसा है
ह्यूमन बीइंग का. At each frequency, the threshold intensity is determined and plotted on a graph as a percentage of normal hearing. So this provides an object measurement of the degree of deafness. Degree of deafness पता चलता है इससे, and a picture of tonal range most affected. मतलब tonal range कितना affect हो रहा है उस ह्यूमन का, तो वो समझ में आ जाता है with the audiometer. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियोमेट्री बोलते हैं. ठीक है, हियरिंग लॉस उससे हम लोग को पता चलता है कौन से कितने डिग्री में उसका उनका हियरिंग लॉस है. सो दिस आर ऑल अबाउट द ऑडिटरी एंड द विजुअल पाथवे. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. रिप्लाई प्लीज. समझ में आ गया आप लोगों को? यस? एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क. इजी है ये तो, आप लोगों को बस रिवाइज हो गया. ओके, वन थिंग आई वांट टू अनाउंस. प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन. ठीक है, अच्छे से सुनना. सी आज तो 5th है. फ्रॉम 8 ऑनवर्ड यू हैव योर रिवीजन क्लासेस. तो जिनका जिनका अटेंडेंस कम है, प्लीज लिसन केयरफुली. जिनका जिनका अटेंडेंस कम है, प्लीज अटेंड करना है क्लास, आपको रिवीजन क्लास. और जिनका अटेंडेंस ठीक है उनके हिसाब से है. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑन 20th अगस्त, ठीक है, 20 तारीख को 20th अगस्त यू हैव योर नेक्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन. इंटरनल एग्जामिनेशन 20th अगस्त है. तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ो. एक ही पेपर होगा, मतलब विल डू वन पेपर. मैं बता देती हूँ, 3 आवर का एग्जामिनेशन होगा. ओके, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा. मैं बाद में फिर से आप लोगों को कंफर्म करूंगी 20th अगस्त को. ठीक है, तो 3 घंटे का एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये एमसीक्यूज नहीं है लाइक द लास्ट टाइम. ठीक है, एमसीक्यू नहीं है. तो अच्छे से सुनो. 20 अगस्त को इंटरनल एग्जाम है आप लोगों का, जो थियरिटिकल होगा. 10 to 1 3 घंटे का आप लोगों को एग्जाम होगा, जिसमें एक 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, 10 मार्क्स न्यूमरेट जैसे रहता है वैसा रहेगा, और 25 मार्क्स का शॉर्ट नोट रहेगा. बट यू हैव टू कवर योर ऑल सिलेबस. फर्स्ट पेपर 1, पेपर 2, सब पूरे सिलेबस को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. आफ्टर दैट विल गिव यू एग्जामिनेशन पेपर फॉर ओनली वन. एक ही पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें पूरे सिलेबस रहेगा. पेपर 1 का भी, पेपर 2 का. बट विल टेक ओनली 1 एग्जाम. ठीक है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा. एन्यूमेट्स जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा आपका शॉर्ट नोट. सो प्लीज अच्छे से अभी से स्टार्ट करो आपका पढ़ाई. 20th अगस्त यू हैव योर इंटरनल एग्जामिनेशन. क्लियर हो गया? फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स, दोज हु हैव योर लो अटेंडेंस, you will have to attend the revision class. Clear everyone? Okay, then thank you for today's class.